और आजकल कुछ पार्टी, लोकल पार्टी सिर्फ इमोशन, आवेग, इमोशन, सेंटिमेंट के भरोसे राजनीति करते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। और कांग्रेस का डिमांड है, चाहे हमें वोट मिले ना मिले, चाहे सत्ता में आए ना आए, हम तिपरासा आदिवासी जनगोष्ठी के हित में हम आवाज बुलंद रखेंगे और आने वाले दिन में हम लड़ाई संग्राम करेंगे। मैंने आज तक सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। आप मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए। मैंने आज तक सोनिया जी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है और मैं बोलूँगा भी नहीं। मैं अपना राजनीति इतना नीचे नहीं लाऊंगा क्योंकि मेरे बहुत दोस्त हैं कांग्रेस में। पीयूष विश्वास जी इज़ अ वेरी गुड वेल विशर ऑफ माय फैमिली। तापस दे हैं, उसके बाद बिरजीत सिन्हा हैं, गोपाल बाबू हैं, गोपाल राय की जय हो, राखू दास है, बहुत लोग हैं। मैं कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से व्यवहार किया, बापतू है, अच्छे तरीके से व्यवहार किया है। जिसने आज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने अपना पॉलिटिक्स किया, मैं समझ सकता हूँ। आपके खिलाफ मुझे कोई शिकवा और आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू। एक ना एक दिन आप भी मेरे संग आकर एक संग चाय पियेंगे और बैठकर बात करेंगे। मैं समझता हूँ आपका राजनीति, नो प्रॉब्लम। मुझे अपने लोगों को जस्टिस देना है और वो जस्टिस मैं अपने तरीके से 100% दूंगा, गवर्नमेंट में रह के या बाहर रह के भी, लेकिन अपने लोगों को मैं पीछे नहीं छोड़ने वाला। গত 3 মার্চ 2025 আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, যারা যে সমস্ত ছাত্র সংগঠন, তিপ্রামথার ছাত্র সংগঠন, তারা কিছুদিন বাদে বাদে আন্দোলন সংগঠিত করে এবং কংগ্রেসের যে ডিমান্ড, রোমান স্ক্রিপ্ট তার সপক্ষে ডিমান্ড করে। উই আর হ্যাপি। কিন্তু আজকে কি আমরা এই সমস্ত ছাত্রদের কাছে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই না, আফটার দিস মাইনিউটস অফ দ্য মিটিং, হাউ কাম তিপ্রামথা ক্যান বি এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দিস গভর্নমেন্ট? হাউ কাম তিপ্রামথা be a part and parcel of this government? বিধানসভা অধিবেশনে, লাস্ট বিধানসভা অধিবেশনে আমি তিপ্রামথার এমএলএদেরকে বলেছি, বিধানসভা অন রেকর্ড, যে স্ক্রিপ্টেড আন্দোলন করে, লোক দেখানো আন্দোলন করে, গোটা আন্দোলন করে কোনো কিছু আদায় করা যায় না। আগের দিন বসে একসঙ্গে মিটিং করবে, চা খাবে, তারপরের দিন রাস্তা রোকো করবে সারা রাজ্য জুড়ে, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখা করবে। মুখ্যমন্ত্রী কি আশ্বস্ত করেছে আমরা আমাদের জানা নেই। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো আর আমরা দেখছি কাগজে পত্রে মাইনিউটসের মধ্যে আরেক রকম কথা। দ্যাট মিনস the BJP government is completely allergic towards acceptance of Roman script for Kokborok language. They have a demand for a separate script, Devanagari script. আমার মনে হচ্ছে এই মাইনিউটস থেকে দেবনাগরী স্ক্রিপ্টকে যদি তারা অ্যাকসেপ্ট না করাতে পারে, তাহলে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দিয়ে তারা চালিয়ে যেতে চাইছে, বাট দে আর রিলাক্টেন্ট টু অ্যাকসেপ্ট দ্য রোমান স্ক্রিপ্ট উইচ দ্য মেজরিটি, আমি বলবো 99% অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল ওয়ান্ট সো। আমার দাবি থাকবে, ইফ এট অল তিপ্রামথা is serious to this demand, after this black and white minutes of the meeting held on 3rd March 2025,
Tipra Motha has got no moral authority to be a part and parcel of this government. They should immediately pull out themselves out of this government, and I would rather invite them. Let Tipra Motha, Congress and other like-minded parties who are demanding for Roman script, let them take to the states, let them fight it out. কিন্তু স্ক্রিপ্টেড আন্দোলন করে, লোক দেখানো আন্দোলন করে তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী, ইঞ্জিনিয়ার জাতিগোষ্ঠীকে বোকা বানানোর আর কোনো সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী এটাকে বোঝার জন্য আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করছি। আমার অনুরোধ থাকবে ওই সমস্ত অর্গানাইজেশনের কাছে যারা রোমান স্ক্রিপ্টের সত্যিকারের, যদি if they are sincere to their demand, এখন আন্দোলনটা হবে সদলীয় আন্দোলন ফার্স্ট। I will ask Tipra Motha student organization, all the student leaders, जाओ अपने सुप्रीमो को पास जाओ, जाके बोलो मंत्रिसभा से उनका मंत्रियों को वापस लेके आए, सरकार से समर्थन वापस कर ले, उठा ले, क्योंकि आपको मजाक बना के रखा है। ये माइन्यूट से पता चलता है कि आप लोगों को डिमांड जो है बीजेपी ने मजाक बना के रखा है। नाउ इट इज अप टू द Tipra Motha whether they want to remain in power at the expense of the legitimate demand of the Tiprasa people. They want to enjoy power and other things, then they can very well remain in the ministry. अभी टेन्योर खत्म, अभी दोबारा चुन के आए हैं 2024 को। अभी ये 125th अमेंडमेंट बिल को दोबारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक दफे 2020 5 मार्च को इंट्रोड्यूस किया, पास नहीं किया, पास नहीं करवाया। विलेज कमेटी इलेक्शन किया जाए, हम भी डिमांड करते हैं, लेकिन हमारा डिमांड में तिप्रासा, कांग्रेस का जो डिमांड है वो तिप्रासा जाति गोष्ठी के हित में, कि हम लोग क्यों कर रहे, देर हुआ और थोड़ा देर कर लो, इस बीच इस बिल को पास करो। पास करने से क्या होगा, 3 टायर विलेज कमेटी होगा, तो पॉलिटिकली मोर एम्पावरमेंट, सोशली मोर एम्पावरमेंट, और सबसे खास तौर पर इकोनॉमिकली मोर एम्पावरमेंट, ज्यादा पैसा फ्लो करेगा विलेज कमेटी और एडीसी में। तो ये तो neither the BJP nor the Tipra Motha is sincere to this demand. We once again demand to this press media, to the BJP government and Tipra Motha party, आपका जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन, क्या चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन में? कांग्रेस का डिमांड क्या है? 125th अमेंडमेंट बिल। कांग्रेस का डिमांड है 371K। कांग्रेस का डिमांड है आर्टिकल 280 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस का डिमांड वेरी स्पेसिफिक, जितना भी लोग वहां पे रहते हैं एडीसी एरिया में, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जीएसटी देते हैं, सामान जो भी खरीदते हैं जीएसटी देते हैं, तो इनका हक बनता है कि सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस जो है, सीधा तौर पे वो सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस का हकदार बने। एडीसी में जो सरकार है वो हकदार बने, लेकिन सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस डायरेक्टली उनको नहीं मिलता है, वो सरकार को मिलता है। तो सरकार क्या करते हैं, एडीसी फिर से दोबारा सरकार के पास बेगिंग बाउल को लेके जाना पड़ता है। वो हक का पैसा जो टैक्स देते वो उनके पास नहीं पहुंचता है। तो इसलिए तो अंडर डेवलप्ड एडीसी एरिया,
और आजकल कुछ पार्टी, लोकल पार्टी सिर्फ इमोशन, आवेग, इमोशन, सेंटिमेंट के भरोसे राजनीति करते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। और कांग्रेस का डिमांड है, चाहे हमें वोट मिले ना मिले, चाहे सत्ता में आए ना आए, हम तिप्रासा आदिवासी जनगोष्ठी के हित में हम आवाज बुलंद रखेंगे और आने वाले दिन में हम लड़ाई संग्राम करेंगे। जिसने आज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने अपना पॉलिटिक्स किया, मैं समझ सकता हूं। आपके खिलाफ मुझे कोई शिकवा और आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू। एक ना एक दिन आप भी मेरे संग आकर एक संग चाय पियेंगे और बैठकर बात करेंगे। मैं समझता हूं आपका राजनीति, नो प्रॉब्लम।